Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we will discuss the very important topic after the Industrial Revolution, that is socialism and Marxism, including communism. We have discussed in detail what were the consequences of Industrial Revolution, how it impacted the rights of the workers, laborers, and even how were the consequences faced by the women, children, and the middle class during that time. When there was a huge disparity between the middle class, business class, and the working classes, as well as there was a social upheaval regarding industrialization processes, then uh, there was a criticism regarding the whole phase of the industrial revolution. So many thinkers, important thinkers, such as we can say Francis Bauer, Rousseau, they all criticized the processes of industrial revolution, and they talk about what were the mitigation or what were the challenges and how it can be how can the overall differences in society can be reduced. So socialism and its element, as it is not new. Since the ancient and even medieval times, the king were focusing on welfareism. We have seen, for example, uh, copper plate inscription of Ashoka Dhamma, which talked about the famine code. Even during the medieval India, Takavi loan were given. So all the aspect of welfareism were there, but concrete ideology of socialism was not there. It evolved in 18th, 17th and 18th and 19th century. So socialism roots, it is in industrial revolution against the critique of overall the capitalist model of production as well as the bourgeois classes. So what is the meaning of socialism? Basic collective ownership of the whole means of production. It is a control of resources, wealth, and means of production by the state. State will be elected by the elected or uh, will be dominated by working classes. And economic inequality, where there is a huge economic inequality between the middle classes, business classes, it has to be reduced. So it will reduce through social redistribution of the wealth. चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो, चाहे वेलफेयरिज्म का बात हो, अलग अलग एरियाज में. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आता है तो कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है हर एक एस्पेक्ट में. प्लस इनलाइटमेंट पीरियड के समय में देर आर वेरी वेरियस थिंकर दैट वर टॉकिंग अबाउट द सोशल फैब्रिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ सोसाइटी. उसके बाद फिर जो रोमांटिसिज्म पीरियड आता है जिसमें मेनी ऑफ द थिंकर्स सच एज रोशियो, they were comparing the modern age as well as with the previous age, and they were comparing how the man has been corrupted by the ills of the civilization, how the man is very moral and just in state of nature. तो जो ह्यूमन स्पिरिट और क्रिएटिविटी है it has reduced due to the private usage of the wealth as well as commercialization of whole product. फॉर एग्जाम्पल वर्किंग क्लास, वो उनका अगर मन नहीं लगता है काम करने में तब भी उनको काम करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उनको एक वेजेस मिलता है. तो जो ह्यूमन स्पिरिट है रिगार्डिंग क्रिएटिविटी, उनको पसंद है कुछ और काम करना, लेकिन वो जबरदस्ती काम कर रहे हैं कोई एक फैक्ट्री के अंदर में. तो ही डिस्कस की ऑरिजिन ऑफ इनक्वालिटी के अंदर में कि देयर वाज इक्वालिटी बिटवीन ऑल द मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर. लेकिन स्लोली जब स्टेट सोसाइटी प्रोग्रेस करता है, सिविलाइजेशन आता है, तो ग्रीड, लस्ट, बाकी सब क्रिएट होता है एंड इनइक्वालिटी क्रिएशन स्टार्ट होता है उसी में से. तब इनइक्वालिटी ऑफ क्रिएशन होता है. देयर इज नीड फॉर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल विल. सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल एज वेल एज जनरल विल बी इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट. स्टेट विल बी इलेक्टेड ऑन द पॉपुलर सॉवरेनिटी ऑफ द होल पीपल. तो रोशियो बात करते हैं इन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी कि ह्यूमन नेचर जो था अच्छा था, इट हैज स्लोली रिड्यूस्ड ड्यू टू द इल्स इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी. तो जो इनइक्वालिटी की बात होता है, जो सोशलिज्म है कहीं ना कहीं उसका रूट्स इनइक्वालिटी से, जो आंख से दिख रहा है उस समय लोगों को. सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. विमेन राइट से बात नहीं हो रहा उस समय तक, ना चिल्ड्रन राइट से बात हो रहा है. विमेन को काम कराया जा रहा है, चिल्ड्रन को काम कराया जा रहा है 14 आवर्स तक. हम लोग देखे हुए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में. तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है ना, वो हर एक
साइकिक के अंदर बैठ चुका है। उसी पर बात करते हैं बाद में, फिर अलग अलग लोग आते हैं, इनइक्वालिटी बात करते हैं, फिर धीरे धीरे रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिर बात करेंगे स्टेट कैसे होना चाहिए। तो ऐसे इवॉल्व होगा ओवरऑल जो थिंकिंग प्रोसेस है। तो विक्टर दे हुपे वो बात किए थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी बैन। क्यों? क्योंकि इसका जो रूट है वो इनइक्वालिटी से है, कि इनइक्वालिटी इज ड्यू टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है वेल्थ ज्यादा है, वेल्थ क्रिएशन ज्यादा है, जिसके प्रॉपर्टी लेस है वेल्थ ही नहीं है, पॉवर्टी है। तो ही sought the communal experiment where the private property was banned in Marshall, मार्शल एक जगह है, and he referred himself as communista। तो कम्युनिस्ट का जो की वर्ड है, जो पहली बार जो ओरिजिनेशन है वो वहीं से आता है, विक्टर हुगो के वर्क से आता है। स्पेसिफिक है उतना, लेकिन बस वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन, दैट इज वाई ऑल दीज नेम्स आर इम्पोर्टेंट। अदरवाइज बेसिक एसेंस ऑफ द होल बोल सकते कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। देन जीन पॉल मरात एंड फ्रांसिस बॉबफ, ये इस समय जिस समय देयर वाज अ अमेरिकन एज वेल एज फ्रेंच रेवोल्यूशन 1780s के समय के। जो मरात है ही इंस्पायर्ड अ जैकोबियन। अब जैकोबियन और फिर दूसरे जो लोग थे, फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस बबोफ, दोनों में फर्क क्या था? तो जैकोबियन हम लोग पढ़े हैं मॉडर्न इंडिया में कैसे। टीपू सुल्तान वॉज अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, ही प्लांटेड द लिबर्टी ट्री इन सेरिंगपट्टनम। तो जैकोबियन क्लब 1790s में फेमस हो रहा था। उसका मकसद ये था कि जो फ्रेंच रिपब्लिक थे उसमें जो कंट्रोल होना चाहिए, इट शुड बी बाय द पीपल फॉर द पीपल रादर देन द किंग, और फिर जो एम्पायर होता है। तो जैकोबियन क्लब वाज टोटल रिपब्लिकन, इट फोकस्ड ऑन लीगल इक्वालिटी। हम लोग शुरू में इन इक्वालिटी की बात करें, यहीं से सोशलिज्म स्टार्ट हो रहा है। तो जैकोबियन क्लब बात करते हैं लीगल इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन बेबफ बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑल, हर एक चीज में इक्वालिटी, रियल इक्वालिटी की बात करते हैं। दैट इज वाई दोनों के बीच में डिफरेंसेस था। तो जीन परत मराठ मराठ जो थे ही इंस्पायर्ड अ जैकोबियन, वी टॉक्ड अबाउट लीगल इक्वालिटी, इंस्टीट्यूशनल इक्वालिटी, सबके लिए खुला होना चाहिए फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। रॉबर्टसफेयर, he was a very important dictator, he called himself an enlightened monarch which shot a reign of terror। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो आइडियल्स को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस वाज यूज्ड, कि जो आइडियल्स खत्म नहीं हो जाए, वापस से काउंटर रेवोल्यूशन को खत्म नहीं करते। तो रॉबर्टसफेयर बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो ये दिखाता था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडियल्स है, जो एक अच्छा आइडियल था, वो कहीं ना कहीं रॉबर्टसफेयर वापस से रेन ऑफ टेरर के अंदर मिला करके फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडियल को वायलेट किए थे। तो जो जैकोबियन थे ही वॉज दे वर द फोकसिंग ऑन रिपब्लिकन आइडियल्स। लेकिन जो फ्रांसिस बेबफ थे तो वो बात करते थे कि कैसे सोसाइटी के अंदर टोटल इक्वालिटी आ सकता है। तो और रेडिकल है एक तरह से, जीन परत तो बेसिक रेडिकल हो गया, ये और रेडिकल है। ही वॉज अ फर्स्ट रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। उसके अंदर में एक न्यूज़पेपर था, ट्रिब्यून ऑफ पीपल। ही और न्यूज़पेपर के थ्रू, क्योंकि उसमें न्यूज़पेपर इवोल्यूशन भी हो रहा है, टेलीग्राफ का इवोल्यूशन है, हर चीज उसमें हो रहा है धीरे धीरे। तो बोल सकते हैं ट्रिब्यून ऑफ पीपल के थ्रू ही वॉज प्रोक्लेमिंग कि हर एक इंसान इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल, देयर शुड बी अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो इक्वालिटी इन शेल्टर, इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर, इक्वालिटी इन वेजेस, हर चीज में इक्वालिटी की बात करते हैं फ्रांसिस बेबफ। तो एक कॉन्स्पिरेसी हुआ था 1796 में, वी विल डिस्कस डिटेल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कॉन्स्पिरेसी इक्वल विच वे फोकसिंग ऑन रिमूविंग द इस्टेब्लिश्ड फ्रेंच डायरेक्टरी। जो उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो सरकार बनती है, जब इनको लगता है कि दे आर नॉट मच रेडिकल विद रिगार्डिंग टू द इक्वालिटी, तो दे वेर इन कॉन्स्पिरेसी विद द अदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैरेशल, ये भी मैरेशल है, दोनों के साथ मिलकर के एक कॉन्स्पिरेसी का आइडिया प्रमोट करना चाह रहे थे और एक कू करना चाह रहे थे ताकि एब्सोल्यूट इक्वालिटी आ सके। लेकिन वो फेल हो जाता है कॉन्स्पिरेसी और दे वर एग्जीक्यूटेड। तो मैरेशल एक और एक आदमी है जो फ्रांसिस बेबफ के साथ में है। He also talked about coup to achieve absolute equality. He laid the strong emphasis on abolition of private property and equal access to food। तो हम लोग क्या देखे अभी तक? देखिए कि शुरू में इन इक्वालिटी का ओरिजिन का बात हो रहा है, लोगों को दिख रहा है कि सोसाइटी के अंदर में इन इक्वालिटी है, लेकिन उस पर कैसे काम करे वो धीरे धीरे हर एक जो थिंकर आते हैं उस पर बात करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन करना चाहिए। कोई बोलता है सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, हर चीज में इक्वालिटी की जरूरत है। कोई बोलता है कि इक्वालिटी सिर्फ लीगल एस्पेक्ट में होना चाहिए, जो जैकोबिन हो गए। इन लोग बोलते हैं इक्वालिटी हर चीज में होना चाहिए।
तो अलग अलग फेजेस आ रहे हैं। देन अब आते हैं 1790s का हो चुका है, तो 1830s 20s का बात करते हैं। उस समय तक क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आ चुका है, सिमिलरली फ्रांस के अंदर में भी आ रहा है और दूसरे कंट्रीज में भी आ रहा है धीरे धीरे, जर्मनी इटली में, जो हम लोग सेकेंड फेज में आते हैं, आयरन कोल इंडस्ट्री का बात करते हैं। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, और 1850s तक आते आते टेलीग्राफ, पैम्फलेट, रेलवे, सब जगह आना स्टार्ट होता है। तो जब ये आता है तो सोसाइटी के अंदर ऑब्वियस बात है कि अवेयरनेस बढ़ेगा विथ रिगार्डिंग टू मॉडर्न आइडियाज। जो ये ट्रिब्यून ऑफ पीपल न्यूज़पेपर जो छाप रहे थे, या और भी जो पैम्फलेट होंगे, इट विल बी मोर, इट विल बी इजियर टू सर्कुलेट देम विद इन ईच अदर, विद इन द कम्युनिटी। तो देयर सोशल इंटरेक्शन विद इन ईच अदर, विद इन द कंट्री। और अलग अलग क्लब्स थे, जैकोबिन क्लब एक क्लब, ऐसे ऐसे बहुत क्लब थे, पेरिस के अंदर में थे, हर जगह वहां पर बात होता था, चाय पर चर्चा, वैसी वहां पर भी नाइट क्लब नहीं बोल सकते, वहां पर भी जो क्लब्स होते हैं उसमें चर्चा होता था हर एक चीज पर। तो स्लोली जो आइडियाज ऑफ सोशलिज्म है, इट गॉट फुट होल्ड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन है, इट वॉज स्लोली इंक्रीजिंग, और जो वर्किंग क्लास है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर। तभी हम लोग बात किए थे पहले सेशन में, 1830s में एक रिफॉर्म आया था यूके के अंदर में, दैट वर टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास। तो 1830s में आया, इसलिए आया क्योंकि ये सब पहले चल रहा था, आइडियाज परकुलेट हो रहा था, एट द सेम टाइम ये जो न्यू टेक्नोलॉजी था, ये भी परकुलेट हो रहा था सोसाइटी के अंदर में। तो फर्स्ट वर्ड सोशलिज्म वाज सीन इन द प्रिंट इन 1832, फ्रेंच ले ग्लोब के अंदर में पहली बार जो वर्ड जो सोशलिज्म है यहाँ पर दिखता है। उसके बाद जो लोग आते हैं, अब क्या है कि ये एक फेज बढ़ते जा रहा है, सोशलिज्म आइडियाज फैलते आ रहा है, अलग अलग थिंकर आ रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। एट द सेम टाइम लिबरलिज्म जो बात करते हैं, जॉन लॉक का हमने बात किया 1688 में, जो दे टॉक अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, ये कुछ कुछ लोग इसमें बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी हटना चाहिए, लेकिन लिबरल लोग जो है वो बात करते हैं प्रॉपर्टी जो जरूरी है, द गवर्नमेंट शुड बी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट प्रॉपर्टी नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी शुड बी प्रोटेक्टेड, जॉन लॉक का है, हॉब्स का हो गया, एक्सेट्रा। तो लिबरल और सोशलिज्म ये पैरेलल है अभी। तो जो इंपॉर्टेंट लिबरल थिंकर थे जेएस मिल उस समय, तो ही स्लोली सॉट रिकंसिलेशन बिटवीन द लिबरलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म। सोशलिज्म का जो आइडिया था, उनको लगा कि अगर लिबरलिज्म जो आइडिया है, इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग बोर्जुआ क्लासेस, फॉर बीइंग कैपिटलिस्ट सपोर्टर। तो अगर सोसाइटी के अंदर हम चेंजेस लेके नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाए। तो 1830s में रेवोल्यूशन भी आया था, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था, जो हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं, यूरोपियन रेवोल्यूशन बात करें 1830s का, 1848 का, दो आता है। तो उस समय जेएस मिल और बड़े बड़े लिबरल थिंकर थे, दे वर रिकंसिलेशन द फैक्ट कि क्या चाहिए सोसाइटी के अंदर में, सो दैट द वर्किंग क्लास कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम। तो जो अलग अलग वो बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी, जो हम लोग पॉलिटी में बात करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी। तो पहली बार जो लिबर्टी कॉन्सेप्ट पॉजिटिव जो है कि स्टेट शुड इंटरवीन टू इंश्योर दैट लिबर्टी इज बीइंग रिस्पेक्टेड फॉर ऑल, कोई लिबर्टी को हैम्पर नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए, तो स्टेट हैज अ इंटरवेंशन। तो नेगेटिव क्या होता है, स्टेट विल नॉट इंटरवीन, बस ये फर्क है दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो कॉन्सेप्ट जो पहली बार आता है वो जीएस मिल और उस समय आता है 30 में आता है। तो स्टेट का रोल बढ़ जाता है, पर वेलफेयरिज्म कॉन्सेप्ट आता है, वेलफेयरिज्म कॉन्सेप्ट ऐसे आएगा, तो स्लोली द पीपल विल डिमांड मोर एंड मोर। तो अलग अलग और भी लोग आ जाएंगे जो बात करेंगे कि स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, कैसा स्टेट होना चाहिए, अब स्टेट पे फोकस होगा। पहले यहां बात हो रहा था कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट फोकस हो रहा था, लेकिन अब जब स्टेट का रोल आ गया धीरे धीरे, तो स्टेट पे फोकस होगा, स्टेट कैसा होना चाहिए। तो पीजी प्रोडों फेमस है, ही वॉज अ फादर ऑफ एनार्किज्म, ही सेड दैट स्टेट इज इवल, डायरेक्ट। स्टेट का काम होना चाहिए कि सोसाइटी के बीच में बात होती है, कोऑपरेशन होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, वेलफेयरिज्म कर सकते हैं। तो लेकिन जो स्टेट है एज अ एंटिटी, इट इज इवल। सिमिलरली लुइस ब्लैंकी एक और है फ्रेंच सोशलिस्ट, ही टॉक्ड अबाउट कि जो रेवोल्यूशन है, इट विल, जो बबफ का था वो पहले लोग थे, इट वाज अ इंडिविजुअल सेंट्रिक कि कॉन्स्पिरेसी इक्वल, 5 लोगों से मिला, उससे थोड़ी रेवोल्यूशन आएगा। ही टॉक्ड अबाउट डेडिकेशन रेवोल्यूशनरी होना चाहिए, जिसका काम ही है कि वो लोगों को तक मैसेज पहुंचा सके, बात कर सके, एट द सेम टाइम वो एक बैंड ऑफ रेवोल्यूशनरी क्रिएट करे, एंड दे विल इंश्योर कि स्टेट को कैप्चर करे और रेवोल्यूशन आ सके। तो लेकिन अब बोला जाए कि ये तो मार्क्सिस्ट ही बोले बाद में कि स्टेट को कैप्चर करना है, लेकिन फर्क ये है कि लुइस ब्लैंकी के लिए स्टेट को कैप्चर करना एक एंड्स है, उनके लिए सोशलिज्म हो कि कैप्चर कर लिए खत्म, लेकिन मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट के लिए कि स्टेट को कैप्चर तो कर लिया, उसके बाद का क्या।
तो उसके बाद का कम्युनिज्म आएगा कि स्टेटलेस सोसाइटी आएगा। वो लुइस ब्लैंक की बात नहीं करते। तो जो बाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल बात करते ही क्रिटिसाइज द एग्जिस्टिंग फ्रेंच सोशलिस्ट जो लुइस ब्लैंक से बोलते हैं कि इनके लिए जो रेवोल्यूशन इट इज ओनली लिमिटेड टिल द स्टेट, कि स्टेट को कैप्चर कर लिए तो रेवोल्यूशन हो गया, अब सोशलिज्म आ चुका। ये सोशलिज्म नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल सोशलिज्म तभी आ सकता है जब सोसाइटी के अंदर वर्किंग क्लास ही करेंगे रेवोल्यूशनरी क्रिएट। दूसरा कि लॉन्ग टर्म में हम लोग स्टेटलेस सोसाइटी बनाएंगे। तो बोले पैरेलल एक और सोशलिज्म चल रहा था जो हम लोग बात करते हैं यूटोपियन सोशलिज्म। ये बात करता है जो लिबरल आइडियाज भी इसके अंदर में सोशलिज्म आइडियाज भी है। तो हम लोग जब बात करते हैं लिबरल आइडिया पैरेलली ग्रो कर रहा था, सोशलिज्म कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मिक्स होगा ना। तो एक यूटोपियन सोशलिज्म कॉन्सेप्ट आता है, वो बात करते हैं कि एवरीवन इज इक्वल, प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए लेकिन इट शुड बी कोऑपरेटिवली ओन। हर इंसान जो है एक दूसरे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट है। दैट इज वाई सेल्फ सफिशिएंसी कैन बी प्रमोटेड। जो हम लोग आज के हिसाब से अगर बात किया जाए तो हम लोग बोलते हैं खादी स्वराज, विलेज स्वराज, जो विमेन जो गांधीजम आइडिया के अंदर में आता है, वो भी यूट्यूब सोशलिज्म का एग्जांपल है। तो चार्ल्स फोरियर बात करते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम। पहली बार जो कोऑपरेटिव सुनते हैं आज का अमूल हो गया बाकी सब, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ सिस्टम वो चार्ल्स फोरियर के समय में लिया है। फिर रॉबर्ट ओवन बात करते हैं कैसे कम्युनिटी बनना चाहिए जो सेल्फ सस्टेनिंग रहे, हर एक बेसिक नेसेसिटी पूरा हो जाए, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड हर चीज पूरा हो जाए, जरूरत नहीं पड़े सरकार का। लेकिन अब ये नाम है यूटोपियन है, तो इसका मतलब जो आइडिया है ना वो यूटोपियन है, आइडियल है, उसको अचीव ही नहीं हो सकता। हर सोसाइटी के अंदर में जब आप छोटा सोसाइटी की बना रहे हो तो खुद में एग्जिस्ट नहीं कर सकते कभी भी। द स्मॉल सोसाइटी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द लार्जेस्ट सोसाइटी। जब ब्लॉक होता है तो ब्लॉक भी डिपेंड करता है, ब्लॉक भी डिपेंड होता है डिस्ट्रिक्ट पर, डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है स्टेट का, अपने में सेल्फ सस्टेनिंग कभी नहीं हो सकता। तो रोवन जो ओवनिज्म कम्युनिटीज थे इट फेल्ड स्लोली। तो यूटोपियन सोशलिज्म का जो आइडियाज था उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, लेकिन जो मॉडल था वो अब हमेशा एक तरह से बोले जाएगा फेलियर ही रहा अभी तक में। तो ये बैक बैक फॉर द माइंड भी चलते आ रहा है। तो हम लोग अब कार्ल मार्क्स पे आएंगे, उससे पहले एक इवोल्यूशन हुआ है कि रोशियो पहले बात करते हैं इनइक्वालिटी का, दिख रहा है लोगों को। फिर जीन पॉल मरात बात करते हैं जैकोबिन इक्वालिटी इन लीगल टर्म्स। फ्रांसिस बेवर फॉर मैरेशल बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ एवरीथिंग, एब्सोल्यूट इक्वालिटी अचीव कैसे कर सकते हैं। तो उसमें लिबरलिज्म और सोशलिज्म के बीच में कंसिलेशन होता है जेएस मिल और सेंट साइमन के अंदर में। वो बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी का, स्टेट इंटरवीन कर सकते हैं। अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों के अंदर में, एक चार्टिस्ट मूवमेंट भी चल रहा है, फ्री ट्रेडर मूवमेंट चल रहा है, हर लोग अपना वर्किंग राइट्स का अवेयरनेस बढ़ रहा है, दे आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस। तो स्लोली जो लोग आए थे दे वर डिमांडिंग ऑन द स्टेट, तो स्टेट के हिसाब से हो रहा है बात। फिर लुइस ब्लैंक की बात करते हैं कि रेवोल्यूशनरी शुड कैप्चर द पावर ऑफ द स्टेट, उनके लिए स्टेट कैप्चर ही एंड है। तो ये पूरा बात करते हैं कि एनार्की की स्टेट होना नहीं चाहिए, स्टेट इज इवल। यूटोपियन सोशलिज्म बात करते हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो ये अलग अलग सोशलिज्म हो गया। अब आते हैं मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म, फिर आएंगे लेनिनिज्म और स्टैलिनिज्म का। तो मार्क्सिज्म जो है वो मार्क्स आइडियाज के ऊपर है। कार्ल मार्क्स वो खुद से आइडिया नहीं निकाले थे, ही वॉज प्रेजेंट इन द मोमेंट इन द टाइम व्हेन सोशलिज्म वाज ऑलरेडी देयर। तो कई बोला जाएगा सोशलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों डिफरेंट है। सोशलिज्म बात करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करने का, स्टेट को कैसे कैप्चर कर, हर सोशलिज्म बात करता है। तो कहीं ना कहीं आइडियाज ऑलरेडी था। उस पर कार्ल मार्क्स से क्या किया कि जो भी आइडियाज था ना वो हैप-हैज़र्ड वे में था, कोई और कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, एक इंटीग्रेशन नहीं था आइडियाज का। तो कार्ल मार्क्स ने एक साइंटिफिक सोशलिज्म का इन्वॉल्व किया, जो पहला इंसान थे वो, इसलिए वो फेमस है। कि साइंटिफिक सोशलिज्म कैसे कि साइंटिफिक मेथड से वो एक तरह सोचे कि सोशलिज्म क्या है। वो बात की शुरू से जो सोसाइटी है वो एक तरह क्लास स्ट्रगल है। पहले स्लेव ओनिंग, पहले जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें क्लास स्ट्रगल था ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोले, अगर इंडिया के हिसाब से बात किया जाए तो वैदिक पीरियड में प्राइवेट प्रॉपर्टी था नहीं, जानापद था ही नहीं, तो स्ट्रगल डिफरेंट था, किंगशिप बेस्ड था, तो क्लास नहीं था। तो लेकिन वही बात करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर में ऐसा था, लेकिन स्लोली व्हेन देयर वाज अ इमर्जन ऑफ क्लास, फॉर एग्जांपल स्लेव ओनिंग और स्लेव, बाद में फ्यूडल लॉर्ड और सर्फ, और बाद में अभी कैपिटल एंड कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट बोर्ड जो है वर्किंग क्लास है। तो हर बार जो है ना एक तरह क्लास स्ट्रगल है। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मतलब कार्ल मार्क्स बात करते हैं जो मटेरियलिस्ट बेसिक मटेरियल है, इट डिटरमाइंस द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन एवरीथिंग। आइडिया नहीं है नेशन, बोले आइडिया, नेशन क्या होता है, आइडिया होता है, मदरलैंड आइडिया है। लेकिन ये बात करते हो सब फेक है। जो असली जो मैटर है वो मटेरियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज को जो कंट्रोल कर पाएगा वही आइडियोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है, वही सोसाइटी का स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकता है, हर एक चीज कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल अगर बोला जाए पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर,
रिसोर्सेज कौन कंट्रोल कर रहा है? हर एक चीज में, इंडस्ट्री क्लासेस, कैपिटलिस्ट क्लासेस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस, साइंटिफिक क्लास, हर चीज में। तो इसलिए बोलते हैं ना कि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, क्योंकि रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि विमेन का रोल क्या है, ये फ्रेडरिक एंगल्स ने मार्क्सिज्म को यूज करके वो सोसाइटी में डाल दिया। कार्ल मार्क्स बात करते हैं मार्क्सिज्म इन इकोनॉमिक स्ट्रगल, फ्रेडरिक एंगल जोड़ते हैं उसको, लेकिन वो सोसाइटी को भी जोड़ लेते हैं उसमें, कि सोशलिज्म में सोसाइटी कि विमेन का जो रोल घटा क्यों, क्योंकि विमेन को हम लोग सिर्फ घर में ही छोड़ दिए, घर में बोले वही काम करो, उनका जो लेबर प्रोडक्टिविटी है ना उसको यूज नहीं किया, कहीं ना कहीं उसको दबा के रखे। तो ये जो क्रिटिक है ये पूरा फेडरिक एंगल का कॉन्सेप्ट है इसमें। अब कार्ल मार्क्स में आते हैं क्लास स्ट्रगल, वी हैव डिस्कस कि इवोल्यूशन में क्लास स्ट्रगल रहा है, और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म एक वो फेमस थ्योरी है, वो बात करता है कि ओवरऑल जो सोसाइटी में मटेरियलिज्म है, फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज है, लैंड हो गया, लैंड हो गया, फिर लेबर हो गया, सब चीज वो डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज कौन कैप्चर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उस समय सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज क्या था, एग्रीकल्चर लैंड था, तो उसके लिए जो कैप्चर कौन करता था, लैंडलॉर्ड थे, इसलिए सर्फ तो लैंडलेस थे, पावर नहीं था। लैंडलॉर्ड के एरिस्टोक्रेटिक के हिसाब से गाना, उनके हिसाब से म्यूजिक, उनके हिसाब से हिस्ट्री, उनके हिसाब से पावर स्ट्रगल, उनके हिसाब से हर एक चीज। हम लोग आज ही बात करते हैं ना कि मिडिल इंडिया के अंदर में इट इज हिस्ट्री ऑफ द किंग एज वेल एज नॉट, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल। तो यही कारण है, जिसके पास पावर है वो मटेरियल से डिराइव होता है हर एक चीज। तो बात करते हैं डायलेक्टिक, मतलब कि दो मटेरियल आपस में टकराता है तो एक जीतता है। फॉर एग्जाम्पल जब सोसाइटी के अंदर रिवॉल्यूशन होता है फ्रॉम द क्लास स्ट्रगल, फ्रॉम द फेज ऑफ स्लेव ओनिंग एंड स्लेव ओनिंग सोसाइटी, जिसमें स्लेव ओनर होते हैं और स्लेव होते हैं, और जब फेज नया चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड क्लास आता है, तो नया एक सिंथेसिस क्रिएट करता है, एक नया फेज आता है, तो इसी को डायलेक्टिक प्रोसेस बोलते हैं कि फेज चेंज हो रहा है, एक नया क्लास क्रिएट हो रहा है, तो कहां तक जाएगा, उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो बेसिक जो एक थ्रेड है वो है क्लास स्ट्रगल, हर बार क्लास ही स्ट्रगल हो रहा है। तो ये बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कि जो कैपिटलिज्म है वो इतना ज्यादा इनइक्वालिटी आएगा और इतना ज्यादा वो यूज एक्सप्लॉइट करेंगे, अल्टीमेटली रेवोल्यूशन क्रिएट होगा। रेवोल्यूशन विल बी डन बाय द प्रोलेटेरिएट क्लासेस, वर्किंग क्लासेस। उस पर पेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स बात करते हैं पेजेंट के पास खुद का लैंड होता है, लेकिन वर्कर के पास खुद का लैंड नहीं है, और पेजेंट कहीं ना कहीं वो खुद भी ओनर भी है और खुद भी प्रोड्यूसर भी है, लेकिन वर्किंग क्लास सिर्फ प्रोड्यूसर, एक तरह से खुद वो काम करते हैं, लेबर है, लेकिन ओनर नहीं है। इसलिए वर्किंग क्लास से फोकस की, इसलिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का बात करते हैं कार्ल मार्क्स, ताकि एक रेवोल्यूशन क्रिएट करे, और रेवोल्यूशन के बाद स्लोली सोसाइटी के अंदर में सबको बोला जाए कि काम करो, कंपलसरी काम हो, सबके लिए काम हो कंपलसरी। उसके बाद जब लगे कि सोसाइटी के अंदर में इक्वालिटी आ रहा है, तो हम लोग स्टेट को हटा देंगे और स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट हो जाएगा, सबको इक्वल रहेगा उसमें। तो कार्ल मार्क्स बात कर लिए। तो ये जो बात की है कि कोई भी बात कर रहा है ना, यहाँ पर सब बात कर रहे हैं रेवोल्यूशन कैसे करे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, तो कार्ल मार्क्स पहली बार एंड रिजल्ट फोकस करते हैं कि क्या होना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी एक एम, प्लस उसके हिसाब से दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, जब वो बात करते हैं कम्युनिस्ट ऑफ द जो प्रोलेटेरिएट अराउंड द वर्ल्ड यूनाइट एक्सक्लेमेशन मार्क अगेंस्ट कैप बोर्जो क्लास, तो वो लेके आते हैं, बोलते हैं कि ये तो पक्का ही होगा, उनको पता था 100% ये हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो डिप्रेशन चल जाते हैं एक तरह से। कार्ल मार्क्स से ऐसा होता ही नहीं है। जब वो डेथ हुआ था उनका, फ्रेडरिक एंगल का डेथ हुआ था, तो बाद में 1905 और 1917 में बोल्शेविक जो लेनिन के अंदर में वो आइडियाज को यूज करते हैं और अपने आइडियाज को यूज करते हैं, तो लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म दोनों जुड़ते हैं और वो क्रिएट करते हैं सोवियत यूनियन। तो पहला सोवियत यूनियन वाज अ एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल मॉडल दैट वाज अप्लाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बोल सकते हैं, या फिर रेवोल्यूशनरी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल। तो ये हो गया मार्क्सिज्म पूरा पूरा। तो कम्युनिज्म जो है वो एक तरह से एंड गोल है, लेकिन यहां पर बात ही नहीं हुआ कोई चीज का, इसलिए बस फर्क है पहले का सोशलिस्ट में और मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट में और मार्क्सिस्ट के अंदर में। ये अब है कि स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, अब हर जगह सोशलिज्म फैलता है, कैसे होता है, 1848 में लेकर आता है फ्रेडरिक एंगल, 1870s 80s तक चर्चा करते हैं सोशलिज्म सोसाइटी, वो क्रिटिक करते हैं हर एक चीज को। फॉर एग्जांपल वो आर्ट एंड ट्रेडिशन को क्रिटिक करते हैं, जो भी आर्ट होता है यहाँ पर वर्किंग क्लास का तो है ही नहीं, वो एक तरह से सब पैट्रोनाइज, इट वाज ऑलवेज पैट्रोनाइज बाय द स्टेट। और आर्ट के अंदर में कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया जाता है लग्जरी गुड को, जस्टिफाई किया जाता है टेस्ट को, ऑपुलेंट टेस्ट को।
तो वो दिखाते हैं कि जो बोर्जो क्लासेस है कैसे माइंड कंट्रोल करते हैं, कैसे वो कंट्रोल कर करते हैं सोसाइटी को। तो वो जो चीज है ना, वो फ्रेडरिक एंगल लेके आया सोसाइटी के अंदर, कैसे विमेन को कैसे कंट्रोल करते हैं, विमेन जो राइट्स है उस पर बात करते हैं। तो फ्रेडरिक एंगल, कार्ल मार्क्स, वो इंपॉर्टेंट दोनों पर्सनैलिटी है विद रिगार्डिंग टू मार्क्सिज्म। तो वी हैव डिस्कस जो मार्क्सिज्म है उसमें एंड गोल कम्युनिज्म है। तो मार्क्सिज्म एक सोशलिज्म बड़ा हो गया, उसके अंदर में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट का रूल हो गया, अलग अलग यूटोपियन सोशलिज्म आ गया, अलग अलग लोग आ गए। मार्क्सिज्म स्पेसिफिक एरिया होगा जो कार्ल मार्क्स का और फ्रेडरिक एंगल का कॉन्सेप्ट है, उसका जो एंड गोल है वो कम्युनिज्म हो गया कि स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेट ही नहीं रहेगा। अब अब लेनिन आते हैं, वो अपने आइडिया से जोड़ते हैं। वो बोलते हैं लेनिन कि मार्क्स जो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास का बात करते हैं, लेकिन जो रशियन सोसाइटी है, इट इज नॉट ओनली ऑफ द वर्किंग क्लासेस बट ऑल्सो द पेजेंट क्लास, कुलक उनके पास, क्योंकि वहां पर बहुत डिफरेंसेस है। वह इनलाइटमेंट फेज बहुत धीरे है, वहां पर इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच नहीं है कि आइडिया फ्री फ्लो कर रहा है। तो सोशल सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा है, ऑक्टोडॉक्सी बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज बहुत स्लो है, तो मॉडर्नाइजेशन बहुत कम है। इसी के लिए रेवोल्यूशन वहां पहले आता है, हर जगह नहीं आता, क्योंकि इंग्लैंड में कोशिश किया जाता है, फ्रांस में कोशिश किया जाता है, लेकिन सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि किंग जो होते हैं, वहां के जो रूलर होते हैं, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, दे आर दे आर ऑल्सो इनिशिएटिंग रिफॉर्म। जब हमने बात किया 1830s का रिफॉर्म यूके के अंदर में, प्रूशियन एम्पायर के अंदर में हम लोग पब्लिक हेल्थ का बात किए, एजुकेशन का बात किए, आईटीआई का बात किए, आईटी मतलब वहां के हिसाब से जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसका बात किए, फिर एमएसएमई का बात किए। तो हर जगह देखा जा रहा है तो एक रिफॉर्म आ रहा है, लेकिन सोसाइटी जो रशियन सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म आया बहुत लिमिटेड रिफॉर्म आया, तो इसलिए वहां रेवोल्यूशन बहुत वायलेंट था। इट वॉज लेड बाय द ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरी, जिसको बोलते हैं वैनगार्ड पार्टी। और लेनिन बात करते थे कि हर कोई रेवोल्यूशन नहीं क्रिएट कर सकता है, सबके पास इतना कैपेसिटी और इंटेलेक्ट नहीं है, इसलिए एक ग्रुप होना चाहिए दैट विल क्रिएट ए रेवोल्यूशन, और वो क्रिएट करेंगे सोसाइटी जिसको बोलते हैं सोवियत सोसाइटी। सोवियत सोवियत हम लोग डिटेल में बात करेंगे सोवियत यूनियन के बारे में। तो वहां आते हैं सोवियत यूनियन जब ताकतवर हो जाता है, तो जब पावर आता है और ऑरा आता है, तो स्लोली इट जो आइडियाज है वो हर जगह पर होता है। इसलिए जो सोवियत यूनियन बनता है उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिखता है। 1925 में एमएन रॉय लेकर आते हैं एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एमएन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ इवन मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के एमएन रॉय। तो इंडिया में लेकर आते हैं आइडियाज को, वो आता है। प्लस यहाँ पर जो एचएसआरसी का कल ही क्वेश्चन था जो भगत सिंह का, उन भी इंस्पायर होते हैं सोशलिज्म और मार्क्सिज्म कॉन्सेप्ट से। उनको लगता है कि सोवियत में जब सरकार जब बन सकता है तो यहाँ ही बन सकता है। तो जो गदराइट पार्टी होते हैं थोड़ा सोशलिस्ट प्रिंसिपल उसमें भी होता है, एचएसआरसी में वो होता है। फिर और भी जो इंपॉर्टेंट कानपुर कॉन्स्पिरेसी, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी में बड़े बड़े लीडर को भी, इनको भी मेरिट हो गया, मेरिट कॉन्स्पिरेसी हो गया, इसमें अलग अलग लीडर को भी कैप्चर किया गया था बाय द ब्रिटिश स्टेट। तो वो भी बात करते थे मार्क्सिज्म कैसे इंडिया में, तो इंडिया में भी मार्क्सिज्म फैलते आ रहा है। तो अब इंडिया में क्या होता है, तो इंडिया में मार्क्सिज्म रेवोल्यूशन क्यों नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि इंडिया में पहली बात है कि क्लास सिर्फ अकेला नहीं है, यहाँ कास्ट भी है। तो जो क्लास अगर हो सकता है सेम हो, अलग अलग हो, लेकिन अगर कास्ट सेम है ना, तो कहीं ना कहीं वो हेज क्रिएट करता है, तो एक उसके कारण होता है। दूसरा, जो इंडिया है इट वॉज फोकसिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो ब्रिटिशर के अगेंस्ट जब बात करते हैं तो इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट था इट वॉज इंक्लूसिव। उसमें कम्युनिस्ट प्रिंसिपल को जोड़ा जा रहा था, मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल को जोड़ा जा रहा था, उसमें सोशलिस्ट को भी जोड़ा था, इसलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आया। इसलिए हम लोग कुछ कुछ आइडिया का बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेबर राइट। 1920s में इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन 1920s में क्यों आया, वो 1910 में क्यों नहीं है, क्योंकि 17 में रशियन रेवोल्यूशन आता है। तो वहां से वर्किंग क्लास को एक एनर्जेटिक मिलता है, एनर्जी मिलता है कि हम लोग यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ भी हम लोग राइट्स का एक हो सकता है बात, तो आता है। तो किसान सभा उसी समय आता है, 1930s में आता है। क्यों, क्योंकि ही वाज दे वर आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेरियस कुलक और किसान मूवमेंट विच वर टेकिंग प्लेस इन रशिया एंड बाकी सब कंट्री के अंदर में। तो स्लोली आइडियाज सर्कुलेट होता है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी और फिर ओवरऑल जो कांग्रेस नेशनल मूवमेंट लेड बाय गांधी जी और बाकी जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, दे वर वेरी इंटीग्रेटेड। हर एक आइडियाज को इन्होंने इंक्लूड किया जो हमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल लेबर का बात किए, सॉइल टैक्स नहीं होना चाहिए, विमेन का बात किए, तो क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट थे वो कुछ कुछ जगह सक्सेसफुल हो पाए। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में वहां पर आया, जब लोग डिटेल में करेंगे इन द कोल्ड वॉर और बाकी सब फेज में। केरला में आया 1960s के समय में, बाकी जगह, लेकिन बाकी जगह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों कि कास्ट है, प्लस सोसाइटी जो जो स्टेट है इट वाज मोर इंटीग्रेटिव, मोर इंक्लूसिव, दैट इज वाई रशिया नहीं था ऐसा। और तीसरा चीज कि यहाँ पर जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं एक लिबरेटिंग वैल्यू क्रिएट करता है। जो फॉर एग्जाम्पल अलग अलग क्लास है लेकिन सबको यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाते हैं तो सबको ये साथ मनाते हैं।
तो जो क्लास का डिफरेंस है उतना ज्यादा स्टार्क नहीं है जितना दिखता है लेकिन उतना भी नहीं है, क्योंकि सबको पंडाल घूमने आते हैं, गणपति फेस्टिवल सबको बनाते हैं, तो ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर इतना अवेयरनेस था कि जो क्लासिज्म है उसको कम कर सके, इसलिए यहाँ पर वैसा नहीं आ पाया। और दूसरा कि रेवोल्यूशनरी जो आइडिया होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो लेकिन हमारा जो देश था वो एक तरह से आइडियाज चल बात हो रहा था सत्याग्रह का, अहिंसा का, दैट इज वाई कि वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा जो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल थे, जो कम्युनिस्ट लीडर थे, कुछ कुछ लोग उसमें भी कोई कोई नेशनलिस्ट पे थे, लेकिन कुछ कुछ लोग दे वर डायरेक्टली फॉलोइंग द सोवियत यूनियन मैंडेट। जब सोवियत यूनियन सपोर्ट कर दिया 1941 वॉर के समय में ब्रिटेन को और यूएस को, तब जो कम्युनिस्ट थे वो बोले कि क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो उनका जो एक एक पर्सपेक्टिव था अमंग द कॉमन सिटीजन वो था कि वो तो सोवियत यूनियन में बात कर रहे हैं हर जगह, तो वो एक एक डाउट क्रिएट किया, तो वो एक एस्पेक्ट आता है, वो भी आता है। फिर दूसरा कि जब इंडिया आजाद होता है, जब इंडिया, तो इंडिया वॉज अ थर्ड फ्रंट, नया प्रिंसिपल आता है इसमें दोनों तरह से फंडिंग आ रहा है, तो स्लोली उस फेज में भी हम लोग एक तरह से कोलैबोरेट भी करते हैं, आईटी कानपुर स्टैब्लिश करते हैं, आईटी खड़गपुर स्टैब्लिश करते हैं, भेल स्टैब्लिश करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वेस्टर्न कंट्री से भी। फॉर एग्जाम्पल एक तारापुर है कहीं पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट है दैट इज स्टैब्लिश विद कैनेडियन न्यूक्लियर रिसर्च, तो वहां से भी ले रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग सोवियत यूनियन से भी रिश्ता बढ़ा रहे हैं। तो ये एक एस्पेक्ट आ गया। तो लेनिनिज्म बात कर ले, मार्क्सिज्म बात कर ले, कम्युनिज्म बात कर, सोशलिज्म बात कर, ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट हो गया। अब सोशलिज्म प्रिंसिपल जो नेहरूविज्म का है, नेहरू के अंदर में सोशलिज्म प्रिंसिपल क्या है कि जो नेहरूविज्म है वो एक तरह से सोशलिस्ट प्रिंसिपल तो है ही पूरा का पूरा, तभी हम लोग बात करते हैं पीएसयू का कि सरकार ही देंगे जॉब, सरकार ही हर चीज देंगे, तो नेहरूइज्म हो गया। इस गवर्नमेंट विल बी द ओनिंग द स्टेक, तो लाइसेंस रह जाता है और प्लानिंग कमीशन आता है और हर चीज जो सोवियत यूनियन करता है, और प्लस अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, वो नेहरू सोशलिज्म हो गया, जिसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात होता है, साइंटिफिक मॉडर्नाइजेशन का बात हुआ, हेवी इंडस्ट्री का बात हुआ, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म का बात हुआ, लैंड रिफॉर्म का बात हुआ, कोऑपरेटिव का बात हुआ, लाइसेंस को बैंकिंग नेशनलाइजेशन का बात हुआ, कोल नेशनलाइजेशन का बात हुआ, हर एक चीज जो नेशनलाइजेशन है वो सोशलिज्म, नेहरूवियम सोशलिज्म हो गया। अब इसमें भी बोल सकते हैं कि जो सोशलिस्टिक टेंडेंसी था वो आज भी प्रेजेंट है, क्योंकि 1976 के अंदर में अमेंडमेंट आता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें सोशलिज्म को जोड़ा जाता है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो इंडिया का है इट इज मिक्स्ड। हम लोग आज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस का बात कर रहे हैं, हर जन तक पहुंचाना चाहिए, लाभार्थी का बात कर रहे हैं, हम लोग अंत्योदय तक बात कर रहे हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म ही है। फिर अब जो सोशलिज्म है वो सिर्फ इंडिया, सोवियत यूनियन नहीं है, हर एक कंट्री के अंदर में आता है, कुछ ना कुछ फेजेस में एक रिवोल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन बहुत जगह सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वेस्टर्न कंट्री के अंदर में कुछ कुछ जगह हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में, जैसे बेलोरूस के अंदर में, सेंट्रल एशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, तो हर कोई इंटीग्रेट होकर सोवियत यूनियन बन जाता है। उसके बाद जो अलग अलग कंट्री थे, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, वहां पर भी आता है कम्युनिज्म, तो दैट वाज अ डिफरेंट कम्युनिज्म, वो हो गया। जब हम लोग वी विल डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग चाइनीज रेवोल्यूशन, इसमें सीसीपी का रोल आता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो आता है। वियतकॉन्ग, वियतनाम का, जब हम लोग डीकोलोनाइजेशन का बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग वियतकॉन्ग का रोल बताएंगे, हो चिन मिन के बारे में बात करेंगे, वियतनाम वॉर के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग कम्युनिज्म और सोशलिस्ट टेंडेंसी और उनका आइडियाज सर्कुलेट होता है सोसाइटी के अंदर में। तो स्लोली जो सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म, वो आज भी रिलेवेंट है हर चीज में, क्योंकि आज भी सोसाइटी के अंदर में क्लास डिफरेंसेस है, और सोशलिज्म इट इज नॉट ओनली रिगार्डिंग द क्लास, इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम जो हम लोग बात करते हैं एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम देमसेल्फ, फ्रॉम द वर्कर, फ्रॉम द प्रोडक्ट, वो भी आज एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, तो न्यू मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल आता है, न्यू मार्क्सिस्ट 1890 से आता है, 1980 से आता है, 1990s में आता है, जो बात करता है जो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल है वो अब तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि सोवियत यूनियन खत्म हो चुका। तो जो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल है इट कैन बी अप्लाइड इनटू द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं विथ रिगार्डिंग टू द वीमेन राइट्स, एलजीबीटी हो गया, एलिनेशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ अ माइनॉरिटी हो गया। तो न्यू मार्क्सिस्ट अलग अलग एरियाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, एट द सेम टाइम हायरार्की है, उसको निकाल के रखते हैं लोगों के बीच में।
तो neo-Marxism. I think we have completed in detail. Question, anyone has question to ask? No, Ashok. ठीक है, thank you everyone. We will take up next set of important topics. Do subscribe to answer.